Hello friends, I'm Anand Panjubhai at Engineers Classes, and today we are going to start with Electrical Power Systems 2, that is EPS 2. We people have studied several things into EPS 1, and the very basic thing that we have understood is how exactly inductor comes into picture, how exactly capacitor comes into picture, and how do we have resistor into the system. Is it clear? Fine. So what is basically EPS 2? So EPS 2 is nothing but the study of power system only, where we are going to learn some further things that if at all three phases got short circuited, what will happen to the system? How it will affect the generator. If the system is supplying, if the generator is supplying to certain load, and at that moment if the fault is occurring, what is going to happen? Fine. If generator is not supplying load, and at that moment if the fault is occurring, what will happen? Because all the different things will be having different scenarios. So before starting with all this fault analysis and things, we should understand majority of the faults which are occurring, it is on transmission lines. Fine. So we have to understand what is transmission line. Okay. So we have seen transmission lines are like this. This is how we have entire network, right? We have seen this thing. And this transmission line is modeled with three basic parameters, that is R, L and C. Right? Okay. Now when we talk about this R, L and C, who will explain how exactly this R comes into picture? How exactly this L comes into picture? And how do we have a capacitor into this picture? I can't see any physical thing over here. Can I? I can't. Right? So how exactly it's coming? कैसे आती है वो चीजें यहाँ पे? रेजिस्टेंस यहाँ पे लटका होता है ऐसे होता है. इंडक्टर ऐसे आता है. तो कैसे? How exactly it comes? Anyone? नहीं. Anybody? Yes. Capacitor comes from the gap of air between two conductors. Absolutely. But as far as I know, you should be having voltage difference if you need capacitor. They are voltage difference. They have voltage difference. Are they having voltage difference? RYV के बीच में voltage difference होता है. तो कैपेसिटर कैसे? दोनों साइड सेम ही पोटेंशियल हो गया ना वो तो कैपेसिटर कैसे जनरेट हुआ? The way he is saying right now that in between two conductors is a air gap, so capacitor will get generated. पर कैपेसिटर में ऐसा होना चाहिए ना, दो प्लेट्स है जिसके बीच में कुछ तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, and one is positively charged, one is negatively charged, तब जाके कैपेसिटर आएगा ना. So one ground and one air. यानी यहाँ पे कैपेसिटर आ सकता है, ऐसा ना? This is ground and this is conductor. तो कंडक्टर के बीच में नहीं आ सकता. हाँ? अभी he said कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस आता है. फाइन. एंड समहाउ वी फिगर्ड इट आउट. कंडक्टर के बीच में तो पोटेंशियल सेम होता है, तो कैपेसिटेंस कैसे जनरेट होगा? पर कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में कैपेसिटेंस आ सकता है, राइट? क्योंकि यहाँ पे कुछ तो जीरो पोटेंशियल, ये कुछ तो पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो एंड इन बिटवीन वी हैव एयर, तो वो हो सकता है. सही बात है कि नहीं? चलो, तो फिर कंडक्टर के बीच में नहीं होता है कैपेसिटर? होता है. तो कैसे होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आता है? आता है कि नहीं आता है? Mohit, we are in three phases over here, fine, and all three phases we people have studied into power electronics, three-phase rectifier, that on every instant there is a potential difference between two phases. This is the only instant when there is same potential on both the conductors. पता चला कि नहीं पता चला? 120 डिग्री अपार्ट है, ये तीसरा 240 डिग्री अपार्ट है, तो यहाँ पे देखो ना, इस मोमेंट पे R और Y के बीच में इतना डिफरेंस है पोटेंशियल का. पता चला कि नहीं पता चला? So there is a potential difference all the time. It is called as instantaneous potential difference we have over there. पता चला ये चीज? Clear हुआ? On every instant there is a different voltage because it follows sine curve. Is it clear?
Fine. So we have potential difference, and because of which the capacitance will get generated here as well. Is it clear? Now my second question is how exactly resistance comes into picture? Conductor as a material and resistivity. Yeah, conductor is a material. Fine, we know that R is directly proportional to L. It is inversely proportional to cross-sectional area, and hence we have got R is equal to rho L by A, where rho is the resistivity of the material. This material will be having its own resistivity. It is having its own length as well, और उसके पास उसका cross-sectional area भी है. So it is definitely having resistance. Is it clear? How inductance comes into picture? Now it's a challenge. We model a transmission line with R, L and C. Fine. We model transmission line with R, L and C. But how exactly it's coming? What is the basic logic behind it? You have studied in EPS 1. कैसे आता है इंडक्टेंस? Anyone? कैसे? Current carrying conductor is having magnetic field of its own. Okay. And how does it justify the inductance? वो तो सबको पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड. हाउ डज इट जस्टिफाई थिंग्स रिगार्डिंग इंडक्टर? एनीबॉडी? कैसे आप लोगों का कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है पूछा. फर्स्ट ईयर ट्रिपल ई वालों को भी ये पता होगा, थर्ड ईयर में आए, इंजीनियर होने वाले आप लोग. Any idea? Okay, let's understand how exactly we get this inductance as well in circuit. We know that inductance is what? N phi by I. Now don't ask me how it is coming. If you don't know, you should understand it's L di by dt, which is equal to N d phi by dt. Voltage across inductor, or this is voltage only, right? Which is generated because of flux. So I can say that Li, which is equal to N phi. So L, which is equal to N phi by I. Now number of turns over here is 1. Flux, the way you have told, flux is generated. I, obviously current is there into the conductor, so it is having self inductance as well as mutual inductance. म्यूचुअल इंडक्टेंस किस वजह से आएगा? क्योंकि बाजू वाले में भी जा रहा है, वो इसके साथ लिंक होगा तो उसका भी सेटिंग होगा. पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ इंडक्टेंस इज कमिंग इनटू पिक्चर, एंड यू पीपल हैव डिराइव्ड ऑल दिस डेरिवेशंस सो वेल. फाइन. बाद में कैपेसिटेंस पे जीएमडी वगैरह का कांसेप्ट आपने किया था, राइट? वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. इवन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गेट. नाउ there are certain voltage levels that we follow, and on the basis of those voltage levels we have distributed lines into 3 categories. Find the transmission line, and today we are just going to analyze short transmission line. You have to explain me in coming lecture, that is next lecture, that what is the basic fundamental on which they have done this classification of transmission lines. How they have got this transmission line is called as a short transmission line. Fine. क्या उन्होंने कंसिडर किया? डिस्टेंस तो है, but distance is for a layman's language. Fine. But apart from distance, what was the technical parameter which made us to go for this kind of 3 different variations into transmission lines or classifications into transmission line? 3 classification है: short transmission line, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. पर वो किस तरह से है वो आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना है. फाइन. वी शैल स्टार्ट विद शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. नाउ इन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल द वोल्टेज लेवल्स आर लेस. फाइन. जितना मुझे दूर जाना है उतना मुझे वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? मेरा पावर लॉस कम होगा. फाइन. वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ पावर. फाइन. यानी I square R का लॉस मेरा रिड्यूस हो जाएगा. इज इट क्लियर? ओके. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर हम वोल्टेज लेवल को एक लेवल से कम रखते हैं, एक सर्टेन लेवल से कम रखते हैं, तो कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस जनरेट नहीं होता. कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में भी कैपेसिटेंस जनरेट नहीं होता. फाइन. क्योंकि जितना पोटेंशियल बढ़ेगा तब जाके वो कैपेसिटेंस आएगा. कैपेसिटेंस का फंडा क्या है?
वो फंडा ऐसा बोलता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है, और एयर में वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करना इट्स रियली डिफिकल्ट। फाइन, इट्स रियली डिफिकल्ट। क्यों? कॉज उसका परमिटिविटी बहुत कम है। उसका क्या बहुत कम है? परमिटिविटी। उसका परमिटिविटी बहुत कम है, इसकी वजह से वो जनरेट नहीं होगा जल्दी कैपेसिटेंस। पता चला कि नहीं पता चला? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D, है ना? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A बाई D। तो एयर का परमिटिविटी बहुत कम है। कितना है? एयर का परमिटिविटी कितना है? हाँ? नहीं। Yes, what? 8.854 into 10 power minus 12 unit. What is the unit of epsilon 0? Unitless, right? It is having a unit. Huh? What is the unit of epsilon 0? Shit. Anyways, epsilon 0 का यूनिट है फैराडे पर मीटर। हे भगवान, चलो कोई नहीं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो कैपेसिटेंस कम होता है जस्ट बिकॉज ऑफ वोल्टेज लेवल्स आर लेस। फाइन, ओके। सो नाउ दिस एंटायर ट्रांसमिशन लाइन इज मॉडल्ड, दिस एंटायर ट्रांसमिशन लाइन इज मॉडल्ड विद ओनली रेजिस्टर एंड इंडक्टर। फाइन, You should be very much amazing with your vector diagrams now, because vector diagrams हर एक जगह पे आएंगे जो आपको अच्छे से पता चलने चाहिए। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन तो पूरा वेक्टर डायग्राम पे ही है। ओके, सो नाउ हियर वी आर हैविंग सेंडिंग एंड वोल्टेज, हियर वी आर हैविंग रिसीविंग एंड वोल्टेज। ट्रांसमिशन लाइन इज लेस इनफ that we can consider sending end current, sorry, receiving end current is exactly same as sending end current. Is it clear? Is it clear? Fine. Sending end current and receiving end currents are same. Clear? Now, this is our resistor, L inductance. Fine. And L will be generating something which is called as inductive reactance. Fine. Okay. Now we are interested to draw the vector diagram of this particular system so that we can go for further analysis. Otherwise also we can understand, मैंने यहाँ पे कुछ तो वोल्टेज दिए, करंट जा रहा है IS is equal to IR is equal to I, say fine, ठीक है, IS is equal to IR is equal to I, कहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है करंट, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, so IS is equal to IR. Is it clear? Is it clear? We can see that the current is going like this only. कहीं पे डिवाइड नहीं हो रहा है वो करंट, so we can say that IS is equal to IR which is equal to I, and I can say that वोल्टेज चेंज होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली चेंज होगा, क्योंकि VS में से इतना ड्रॉप जाएगा, वो ड्रॉप के बाद मुझे VR मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फाइन, सो आई कैन से दैट, अच्छा ये करंट कब आएगा? जब यहाँ पे लोड आएगा, जब यहाँ पे क्या आएगा? लोड आएगा। अगर लोड नहीं होगा तो करंट नहीं होगा। पता चला कि नहीं पता चला? ओके, अच्छा, और IR करंट VR के साथ किस एंगल पे है वो कौन डिफाइन करेगा? हाँ, दिस इंडक्टर। हाँ, मेरा क्वेश्चन इज लाइक दिस, VR IR के साथ किस एंगल पर है वो डिफाइन कौन करेगा? वो किस पे डिपेंड करेगा? इस इंडक्टर पे, बराबर ना? गलत बात, इट इज डिपेंडिंग ऑन द लोड। अगर लोड प्योर रेजिस्टिव है तो VR और IR इन फेज होगा, अगर लोड प्योर इंडक्टिव है तो VR और IR 90 डिग्री का डिफरेंस बनाएगा। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, डिपेंड्स ऑन द लोड। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? फाइन, सो लोड विल डिफाइन वेदर योर व्हाट इज योर पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज डिफाइंड बाय द लोड, नॉट बाय दिस इंडक्टर। पता चला कि नहीं पता चला? तो सर ये इंडक्टर क्या कोई एंगल देगा? डेफिनेटली एंगल देगा ये इंडक्टर। तो सर ये किसके बीच में एंगल देगा? तो ये इंडक्टर एंगल देगा तुझे VR और VS के बीच में। पता चला?
ये इंडक्टर किसके बीच में एंगल देगा? VR और VS के बीच में इंडक्टर का एंगल देगा, वो कुछ तो एंगल डिफरेंस देगा। पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? रिकलेक्ट योर ट्रांसफॉर्मर्स वेक्टर डायग्राम, वी हैव स्टार्टेड फाइन। ट्रांसफॉर्मर के वेक्टर डायग्राम्स पढ़े थे ना आप लोगों ने, फाइन, जिसमें वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी, VS यहां पे है, VR यहां पे है, फाइन। मुझे एक इक्वेशन बनाना है, VS में से I into R plus J XL, J XL का ड्रॉप हो, यहाँ पे XL लिखना पड़ेगा बाद में मुझे, that is J XL, fine। So I can say that VS minus R plus J XL into I, it will give me VR, is it clear? R plus J XL को Z बोल सकते हैं अपन, fine। So I can say that VS minus IZ which is equal to VR, so VR plus IZ will give me VS। पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ कि कोई डाउट? डन, चलो। सो आई कैन से दैट मुझे इससे वेक्टर डायग्राम बनाना है, मुझे इस चीज से वेक्टर डायग्राम बनाना है। वेक्टर डायग्राम कैसे बनाएंगे? मैं VR को रेफरेंस लेता हूं, आई टेक VR एज माय रेफरेंस, सो दिस इज माय रेफरेंस VR। पता चला? फाइन। अब लोड के मुताबिक IR जाएगा कि नहीं जाएगा? लोड के मुताबिक IR जाएगा कि नहीं जाएगा? तो I consider I have RL load with me, so which will be having power factor angle between 0 to 90. पता चला कि नहीं पता चला? ये क्लियर हुआ? So I have got my current which is like this, say this is my IR which is exactly equal to IS. Is it clear? Fine, which is exactly equal to I. So now what am I supposed to do? VR plus IZ, मतलब I into R करने का और I into XL करने का, फाइन। अब रेजिस्टिव ड्रॉप होता है, रेजिस्टिव ड्रॉप इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऐसे पता है, सबको पता है ये चीज, यू नो दिस। रेजिस्टिव ड्रॉप जो होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है और इंडक्टिव ड्रॉप करंट को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये हमें पता है ना, फाइन। ओके, सो वी कैन से दैट, अच्छा जो भी ड्रॉप होगा वो मुझे वोल्टेज किसके साथ ऐड करना है? VR के साथ ऐड करना है ना, डायरेक्शन करंट से लेने की, पर ऐड किसके साथ करने का? वोल्टेज के साथ। सो आई कैन से दैट IR यानी I into R जितना जो ड्रॉप है अपना, I into R, दिस इज इक्वल टू I, दिस इज आल्सो इक्वल टू I। ये पता चला I which is equal to IR which is equal to IS। तो अब I into R का ड्रॉप किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन में। देखो करंट की डायरेक्शन में हुआ, फाइन। डायरेक्शन करंट की पर एडिशन होगा वोल्टेज के साथ, clear? Because I into R is what? It's a voltage across resistor, it's the voltage across resistor। पता चला कि नहीं पता चला? फाइन, ओके। सो VR में क्या ऐड हुआ? I into R ऐड हुआ, ठीक है। चलो अब इसको मैं थोड़ा सा लंबा डालता है और एग्जैक्ट उसको परपेंडिकुलर किसका ड्रॉप हुआ? I into XL का ड्रॉप हुआ, I into XL। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर, फाइन। तो मुझे यहां पे जो मिला, दिस इज माय सेंडिंग एंड वोल्टेज, दिस इज माय रिसीविंग एंड वोल्टेज। पता चला? फाइन। अच्छा, ये जो एंगल है वो मेरा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर हुआ, फाई आर। पता चला? जो डिपेंड करता है लोड पे, फाइन। बाद में ये जो हुआ ये मेरा सेंडिंग एंड पावर फैक्टर हुआ, फाइन, ओके। जो दो चीजों पे डिपेंड करता है, लोड के एंगल पे भी डिपेंड करता है और VR और VS के एंगल पे भी डिपेंड करता है, और ये VR और VS के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। इज इट क्लियर? फाइन। मुझे ये तीनों कैलकुलेट करना आना चाहिए, मुझे ये तीनों कैलकुलेट करना आना चाहिए। मैथमेटिक्स से सारी चीजें होती है, क्लियर, फाइन। वेक्टर डायग्राम्स अगर अच्छे से समझो तो यू विल अंडरस्टैंड एवरी डैम थिंग ऑफ इट, क्लियर। चलो सो ना हमें ये चीज पता चली। अच्छा यहाँ पे इस चीज को मैं ऐसा बोल सकता हूं, दिस इज I into Z, I into Z, क्लियर। अच्छा ये होने के बाद अब मुझे फाइंड करना है परसेंटेज रेगुलेशन, परसेंटेज रेगुलेशन। बस ऐसा करके फाइंड परसेंटेज रेगुलेशन कैसे मिलता है? तो इट इज इक्वल टू V receiving and at no load minus V receiving and at full load divided by V receiving and at no load, clear, fine। पता चला कि नहीं पता चला? So into 100, clear।
तो अब यहाँ पे when we talk about V receiving and no load, तो it is VS only, I'm sorry, V receiving and full load आएगा यहाँ, V receiving and full load। तो जब no load है तब यहाँ पे करंट जाएगा, no load है तब करंट जाएगा, नहीं जाएगा। लोड ही कनेक्टेड नहीं है तो करंट ही नहीं आएगा, करंट ही नहीं आएगा तो ड्रॉप होगा, नहीं होगा। अगर IZ का ड्रॉप ही नहीं हुआ तो VS is equal to VR हो गया कि नहीं हो गया? फाइन। सो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज सेंडिंग एंड वोल्टेज माइनस जब लोड लग ही गया है, फुल लोड लग गया है, तो मेरा रिसीविंग एंड का वोल्टेज एज सच कम हो जाएगा। पता चला कि नहीं पता चला ड्रॉप की वजह से। सो दिस इज वी रिसीविंग एंड अपॉन वी रिसीविंग एंड इनटू 100%। इज इट क्लियर? पता चला? फाइन, ये डन। ओके, सो ये होने के बाद भी अंडरस्टूड रेगुलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज व्हाट? आउटपुट अपॉन इनपुट। फाइन, तो आउटपुट कितना है? तो VR इंटू IR इंटू कोसाइन ऑफ फाई आर, इतना आउटपुट हुआ मेरा। फाइन, डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस, दैट इज इनपुट। फाइन, ओके। सो इन केस ऑफ दिस से अगर VS मुझे पता है तो VS इंटू IS इंटू कोसाइन ऑफ फाई एस विल गिव मी इनपुट। पता चला? राइट। ओके, सो यहाँ पे वी कैन से VR IR cos phi r मेरा आउटपुट है, प्लस लॉसेस कितना होगा? इसमें I स्क्वायर R का लॉस होगा, खत्म। सो दिस इज माय आउटपुट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, इंडक्टेंस लिखा हुआ है, वो दो कंडक्टर्स का है इफ इट इज सिंगल फेज, ये और बाद में रिटर्न पाथ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अगर ऐसा कुछ दे दिया है कि लाइन का रेजिस्टेंस एक साइड का कुछ तो इतना है, तो आपको डबल लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस, यानी जो लॉस होता है वो 2 टाइम्स I स्क्वायर R होता है। ऐसा सब हमें पता चलना चाहिए। तो एक लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें पता चलना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन, राइट डाउन।